Bismillahirrahmanirrahim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني فيفقهوا قولي. I hope you all are doing well. So without wasting time anymore, we are starting today's lecture. That would be the lecture number 3. So let me share slides with you. So in the previous lecture, we discussed about that electric machines basically perform electromechanical conversions, and the basic phenomena that is utilized behind this conversion is the concept of the magnetic field. So we discussed that how magnetic field can be produced. So simply we saw that we have a rectangular core, and whenever we wrap a coil which has n number of turns in it and the current is passing through it, it will produce certain amount of flux or certain amount of the magnetic field. So the amount of flux that is produced dependent on the number of current that is applied, how much number of turns it has, what should be the permeability of the core that we are wrapping across this core, permeability of the coil, sorry, or permeability of the material. And LC is the mean path length, while A is the cross-sectional area. The more the area would be, the more would be the amount of flux that would be reduced in the core. So now we have to deduce a magnetic circuit. Magnetic circuits practically don't exist, but this is just an analogy of the electric circuits. As you have discussed the course of the electronic circuits and electronics, in which you have discussed that electric circuits are any circuit which allows the current to pass through it. So we have to apply a certain amount of potential across any closed circuit, any closed path. That multiplied voltage is called as the voltage, or it could be also known as the electromotive force or EMF. So because this is a closed path, it has a certain resistance in it, and I should be the amount of current that would be flowing through the circuit. We know that whenever we have to connect a certain source, the current would start flowing through it. So that is represented by Ohm's law, and that is termed as V is equals to IR, where V is the applied potential, R is the certain resistance of the circuit, and I would be the amount of current that would be flowing through that circuit. So we can analog a magnetic circuit from here. In case of a magnetic circuit, just like we are applying a voltage or EMF in case of a magnetic circuit, there should be a certain amount of force that should be applied in order to produce a certain type of magnetic field in a magnetic circuit. So magnetic lines of force or magnetic field is represented by phi. This is just like current in the electric circuit. So force that is applied across the magnetic circuit would be termed as magnetomotive force or MMF. So we are representing it by F, and that is called as the magnetomotive force or MMF. That would be the certain amount of force that would be applied across the magnetic circuit in order to produce a certain amount of flux. And how that would be produced, we already saw that magnetic field can be produced if we are wrapping a certain turns of coil and we are passing a current through it. So we can say that this magnetomotive force is nothing but that is equals to Ni, where N represents the number of turns and I is the amount of current that would be applied across the core. So we have to apply a magnetomotive force. In order to close the circuit, we should have a certain reluctance, just like the resistance in the electric circuit, we would have a reluctance in the magnetic circuit, which is nothing but that is the opposition of the flux. And when that circuit would be closed, there would be a certain amount of flux that would be flowing through the magnetic circuit. So we can say that F is the magnetomotive force, R is the reluctance of the circuit, and phi is the amount of flux that is going to be produced. So just like the electric circuit V is equals to IR, we can say that F is equals to phi times R. But just by comparing it, that F is the magnetomotive force, just like EMF, phi is just like current in the electric circuit, and reluctance is just like the resistance in case of the electric circuit. Similarly, magnetomotive force has also certain polarity associated with it, with the positive end of the MMF indicates the flux that exits,
and negative n indicates that the flux that would be re-entered. That could also be predicted by a right hand rule. So we have magnetic analog of conductance is permeance. You already I have an idea that you might know about the conductance. Conductance is as indicated by its name, it allows a current to pass through it. So conductance is nothing but that is the reciprocal of resistance, because resistance is the opposition of the flux, opposition of the current. So just like we have a conductance in case of the electric circuit, we should have a certain opposition of the reluctance in case of the magnetic circuit, and that would be termed as permeance, and that is labeled as P. So I hope that it would be working now. So let me share the screen. Okay, so we can say that phi is equals to F times P, where F is the magnetomotive force and P is the permeance. We also should have an idea about the reluctance of the core. So reluctance of core should be how we can represent it, like, because we know that flux is equals to B times A, because we know that B is equals to flux per unit area. And we know that B is nothing but mu and I by LC. By revising the previous lecture, यहाँ से अगर हम ni को कॉमन लें, so resultant would be mu a by lc. If we compare it with the previous equation, which is F is equals to phi r, from here we can say that phi is equals to F by r. So phi is F, and what should be this resultant? That should be r. So it should be, reluctance should be lc by mu a. So it means that the more would be the mean path length, the more would be the reluctance. How much would be the permeability of the material? Reluctance हमारे पास उतनी ही कम होगी, means material जितना अच्छा होगा उतनी कम वो opposition देगा flux को, and same goes for the cross sectional area. अब वो जो हम polarity indicate कर रहे थे MMF की, that can also be indicated by a right hand rule. Please आप सब लोग अपना right hand लें, ठीक है, और right hand की fingers को आप curl कर लें और thumb को upward direction में point करें. अब इसमें हमारे पास जो right hand की जो direction है, sorry, curled fingers की जो direction है वो हमने indicate करी है, the amount of current that is flowing through the circuit, या direction of the current that is flowing through this core. So जो हमारे पास thumb है, that indicates the direction of the flux, means वो हमारे पास क्या होगा, positive MMF होगा, ठीक है. if अगर हम fingers की direction को जो है वो curl करते हैं in a downward direction, opposite direction में, तो हमारे पास जो है वो flux वहां पे क्या हो रहा है, enter हो रहा है, means that would be indicates the negative MMF. So reluctance follows the same series and the parallel combination rules as resistance in an electric circuits. Now you know that electric circuits में हमारे पास सीरीज सर्किट भी होते हैं, हमारे पास पैरेलल सर्किट्स भी होते हैं. सीरीज सर्किट्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास करंट डिवाइड नहीं हो रहा होता, ठीक है. So all of the resistances are going to be added, and we can find the total resistance by adding each resistance, ठीक है. So we can say that the R equivalent would be R1 plus R2 plus R3 and R4. I'm talking about electric circuits. Similarly, जहाँ पे parallel circuits हमारे पास वो circuits होते हैं जहाँ पे हमारे पास current क्या होता है, divide होता है. This is just like वाटर पाइप के, अगर पानी के पाइप लगे हुए हैं और अगर वो पैरेलल में लगे हुए हैं, तो पानी का जो फ्लो पीछे से आ रहा है वो सारों में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. डिपेंडिंग ऑन किसी पाइप का साइज कितना है, उसमें उतना ही, उसका कितना डाया है और उसकी जो है वो कितनी फ्रिक्शन है, उसके अकॉर्डिंगली जो है वो पाइप में से पानी फ्लो करेगा. मींस कहने का मतलब ये है कि अगर जो है वो हमारे पास सेम जो है वो हमारे पास पाथ होगा तो करंट डिवाइड नहीं होता, और अगर हमारे पास पैरेलल पाथ है तो उसमें करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. सो रेजिस्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल की फॉर्म में आ जाती है. यही प्रिंसिपल हम अप्लाई करते हैं रिलक्टेंस के लिए मैग्नेटिक सर्किट्स. मींस मैग्नेटिक सर्किट्स आल्सो शुड बी can be a series circuit, it can be a parallel circuit. अगर सर्किट सीरीज होगा उसमें फ्लक्स सेम रहेगा, मींस तो इसमें जो इक्विवेलेंट रिलक्टेंस हम आएगी वो हमारे पास ईच रिलक्टेंस का सम हो जाएगी.
पैरेलल कनेक्शंस हमारे पास या पैरेलल सर्किट्स हमारे पास वो सर्किट्स होंगे where the flux has to be divided. So we have to take the reluctance in the equivalence form, that 1 by R equivalent should be 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Okay. So the concept is why we did use magnetic circuits, because we need to calculate the amount of flux that is flowing through the circuit, because flux को measure करने के लिए हमारे पास कोई physical device नहीं है. So all we have to rely on the calculations. So by deducing by using an analogy of a magnetic circuit, हमारे पास जो यहाँ से flux calculation होती है that has accuracy of 95% of the real answer, means actual में जो flux है उसके 95% equivalency में हमारे पास results आते हैं. अब ये जो हमारे पास 5% error rate है वो हमारे पास क्यों आता है? It has 4 major reasons. The first one is leakage flux. Leakage flux जैसे नेम से इंडिकेट हो रहा है that there would be a certain amount of flux that is leaking from the core. Although कि हम core को कंसिडर कर रहे हैं कि वो हमारे पास एक complete closed path है, so all of the flux has to be confined inside the core. तो जितनी हम better core use करेंगे, इसकी better core का मतलब है जितनी इसकी permeability ज्यादा होगी, जितना अच्छा हम magnetic material use करेंगे, flux हमारे पास core के अंदर ही confined रहेगा. But still there could be a certain amount of flux that would be leaking from the core. इसकी because flux ऐसे coil curled है, ठीक है, wrap है, इसमें से कुछ ना कुछ flux जो है वो outside में जाएगा. अब वो जो flux leak हो रहा है that is called as the leakage flux. अब हमारे पास practically कोई information नहीं हो सकती calculation wise कि कितना flux जो है वो हमारे पास leak हो रहा है. इस वजह से हमारे पास we are totally relying on the flux that is dependent on the NI and also dependent on the A and LC. ठीक है, so हमारे पास लीकेज फ्लक्स की कोई कैलकुलेशंस नहीं हो सकती. इस वजह से कुछ ना कुछ फ्लक्स हमारे पास जो है वो लीक करता है and that gives the somehow error in our calculations. Similarly, the second जो हमारे पास रीजन है because हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मीन पाथ लेंथ की और क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो है वो कैलकुलेशन बेस पे कैलकुलेशंस करते हैं. अब जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो मीन पाथ लेंथ है क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो assumptions 100% ट्रू हो. ठीक है, there could be a certain how an error in it. इस वजह से भी हमारे पास कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत एरर आएगा. Similarly, permeability varies with the amount of flux already present in the material. इसी तरह से हम तो ये assume करते हैं कि इस कोर में हम करंट अप्लाई कर रहे हैं और इस वजह से हमारे पास जो है वो इस कोर में फ्लक्स फ्लो कर रहा है. बट देयर वुड बी अ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स दैट इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द कोर. दैट फ्लक्स इज कॉल्ड एज द रेजिडुअल फ्लक्स. ठीक है, उसको हम डिटेल में बाद में टॉपिक है उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम हिस्टैरिसीस को डिस्कस करेंगे. लेकिन वो जो रेजिडुअल फ्लक्स है हम ऑल एंड ऑल ये एज्यूम करें कि हमने करंट अप्लाई किया और कोर में से फ्लक्स फ्लो होना शुरू हो गया. लेकिन ऑलरेडी इस कोर के अंदर बिकॉज दिस कोर इज ऑलरेडी मैग्नेटाइज्ड तो इसके अंदर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लक्स ऑलरेडी प्रेजेंट होता है जिसके बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती. इस रेजिडुअल फ्लक्स की वजह से भी हमारे पास कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत एरर आएगा. एंड द लास्ट वन इज if there is an air gap in the flux path, अगर तो कोर यूनिफॉर्म है फिर तो हमारे पास ये वाला एरर नहीं आ सकता. लेकिन अगर कोर के अंदर कोई ना कोई एयर गैप है, जैसे हमें यहाँ पे नजर आ रहा है 0.05 सेंटीमीटर का कोर में एयर गैप है. अब इस एयर गैप की वजह से क्या होगा कि जो फ्लक्स यहाँ से जब फ्लो करेगा तो वो फ्रिंजिंग इफेक्ट बनाएगा. ठीक है, अब फ्रिंजिंग इफेक्ट ये है बिकॉज ये दरमियान में एयर गैप आ गया. अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ से जो वो ट्रेवल करी है नॉर्थ पोल से साउथ पोल. अब वो सेंटर में से स्ट्रेट ट्रेवल करेंगी लेकिन एजेस से वो क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी. अब ये जो बेंडिंग इफेक्ट है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का, इसको हम कहते हैं फ्रिंजिंग इफेक्ट. द बेंडिंग इफेक्ट ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अक्रॉस द एयर गैप इज कॉल्ड एज द फ्रिंजिंग इफेक्ट. अब इस बेंडिंग की वजह से हो क्या रहा है कि जो कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है जिसको ये होना चाहिए वो हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, इंक्रीज हो गया. So the increase in the effective area due to the fringing effect of the magnetic field. ठीक है, अब ये जो इफेक्टिव एरिया में इंक्रीज आ रही है इसको हम 100% कैलकुलेट नहीं कर सकते जिसकी वजह से भी हमारे पास फ्लक्स कैलकुलेशंस में एरर आता है. बिकॉज वी नो दैट फ्लक्स इज सर्टेन हाउ डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शन एरिया. तो हमारे पास एरिया की जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन आ रही है. इस वजह से भी हमारे पास मैग्नेटिक सर्किट की कैलकुलेशंस में थोड़ा बहुत एरर आएगा. सो वी डिस्कस्ड अबाउट द 4 रीजंस. एक हमारे पास लीकेज फ्लक्स है,
mean path length and cross sectional area की accuracy नहीं होती. We have a residual flux that is already present in the core and we have a fringing effect, जिसकी वजह से हमारे पास calculations में accuracy नहीं आएगी. So यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल है जिसको हम देख लेते हैं. एग्जाम्पल 1.1 और 1.1 इससे पहले की है, although कि मुझे वो करानी चाहिए थी लेकिन टाइम शॉर्ट है इसलिए हम न्यूमेरिकल नंबर 2 पे जाते हैं, 1.2 पे, जिसमें पहले जो न्यूमेरिकल है उसके कॉन्सेप्ट को भी यूज कर एडिशनल कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे दे दिया गया है. अच्छा, अब यहाँ पे न्यूमेरिकल में आपको नजर आ रहा है कि हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कोर है, ठीक है. इस कोर के ऊपर हमने क्या किया हुआ है, एक कॉइल को रैप किया हुआ है. इस कॉइल में से करंट पास हो रहा है. कॉइल की टर्न्स हमारे पास कितने गिवन है, 400. सो वी नो दैट जब हम इस कोर के अक्रॉस कॉइल रैप कर रहे हैं और इसमें से करंट पास करा रहे हैं तो हमारे पास इस कोर में क्या होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. सो वी हैव अ फाई दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट. हमें इस कोर की क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया गया है दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. हमें इसकी मीन पाथ लेंथ दे दी गई है दैट इज 40 सेंटीमीटर. थ्रू आउट द कोर हमारे पास यूनिफॉर्म लेंथ की है इसलिए एक ही मीन पाथ लेंथ है. कोर की लेंथ जो है वो वेरी भी कर सकती है जैसे आपके 1.1 एग्जांपल में है, ठीक है. कोर की रिलेटिव परमेबिलिटी भी गिवन है दैट इज 4000 मटेरियल. और हमारे पास जो है इसमें एक एडिशनल चीज है कि कोर के अंदर इन्होंने क्या बना दिया, एक एयर गैप बना दिया है. 0.05 सेंटीमीटर का एयर गैप है. अब वी नो दैट कि जब भी हमारे पास एयर गैप आएगा हमारे पास क्या होगा, फ्रिंजिंग इफेक्ट आएगा. फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या है कि हमारे पास ये जो एजेस से मैग्नेटिक लाइंस क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी. फ्रिंजिंग इफेक्ट की वजह से हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का क्या होगा, बढ़ जाएगा. और वो जो एरिया में इंक्रीज आ रही है वो कह रहा है assume that fringing in the air gap increases the effective cross sectional area of the air gap by 5%. मतलब जो एक्चुअल एरिया है उसका 5% हमारे पास एरिया में क्या आ जाएगा, इंक्रीज आ जाएगा. अब इस इंफॉर्मेशन को देते हुए आपने क्या फाइंड करना है, टोटल रिलक्टेंस ऑफ द फ्लक्स पाथ. इस फ्लक्स की टोटल रिलक्टेंस क्या है, दैट शुड बी आयरन प्लस एयर गैप. मींस हमें आयरन की भी रिलक्टेंस कैलकुलेट करनी है कि कोर की रिलक्टेंस क्या है, तो एयर गैप है उसकी रिलक्टेंस भी हमें कैलकुलेट करनी है. और यहाँ से हमें टोटल रिलक्टेंस जो है वो फाइंड आउट करनी है. और सेकंड पार्ट में वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप. इस एयर गैप के अंदर अगर हमारे पास फ्लक्स डेंसिटी 0.5 टेस्ला है तो उसके लिए हमें कितना करंट जो है वो रिक्वायर्ड होगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोर की रिलक्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं. हमें रिलेशनशिप पता है दैट रिलक्टेंस इज L by LC by mu A, मीन पाथ लेंथ, परमेबिलिटी एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहाँ पे आसानी है कि कोर की मीन पाथ लेंथ भी गिवन है, परमेबिलिटी रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन है, वहां से हम टोटल परमेबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी गिवन है. बस सिर्फ एक चीज का ख्याल रखना है कि सारे के सारे यूनिट्स आपके पास सेंटीज में है, सेंटीमीटर्स में, एंड वी हैव टू कन्वर्ट इट टू द मीटर्स. तो क्रॉस सेक्शनल मीन पाथ लेंथ हमारे पास 40 सेंटीमीटर गिवन थी. हमने इसको क्या किया, मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 100 कर दिया, मींस मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2. इसका से रिलेटिव परमेबिलिटी गिवन थी दैट इज 4000. टोटल परमेबिलिटी हमारे पास क्या होती है, म्यू आर टाइम म्यू नॉट. सो हमने क्या करना है, रिलेटिव परमेबिलिटी 4000 को मल्टीप्लाई करना है परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस जो कि हमें पता है 4 पाई × 10 पावर -7 होती है. ये आपको पता होना चाहिए. और आगे हमारे पास क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. बिकॉज हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर है सो हमें इसको मल्टीप्लाई करना है 10 पावर -4 से. यहाँ से हमारे पास इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा. और टोटल जो हमारे पास रिलक्टेंस आएगी वो हमारे पास आ रही है 66,300 एम्पियर टर्न्स पर वेबर, जो कि रिलक्टेंस की यूनिट है. तो हमारे पास यहाँ से कोर की मीन पाथ लेंथ आ गई. अब हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हमने ये करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप. अच्छा, अब जो एयर गैप की रिलक्टेंस होगी वो हमारे पास एयर गैप का मीन पाथ लेंथ भी गिवन है, एयर गैप की परमेबिलिटी जो है वो भी गिवन है हमारे पास. हमें पता है एयर है, एयर गैप है तो उसमें एयर ही होगी, सो इसलिए हम उसकी परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस ही यूज करेंगे. यहाँ भी हमारे पास एक डिफरेंस आएगा कि एयर गैप जो है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है. तो इसमें होगा क्या कि cross section area of the air gap would be actual area of the core plus जितना इसमें increase आया है. and increase कितना आया, 5%. 5% of what, 5% of the total area. so हमने सबसे पहले क्या करना है, 5% ले लेना है total area का. so हमने कैलकुलेट करना है 5% of 12 सेंटीमीटर स्क्वायर
ठीक है, वो हमने कैलकुलेट करना, वो कितना आ रहा है, उसमें हमने ऐड अप करना है टोटल एरिया दैट इज 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमने उनको कन्वर्ट करना है मीटर्स में। तो हमारे पास जो टोटल एरिया यहाँ से आएगा दैट इज 0.00126 मीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब मेन पाथ लेंथ गिवन है, इसको हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर लिया, एयर गैप की परमेबिलिटी गिवन है, और हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है। अगर आपको यहाँ पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है सो वी कैन क्लियर इट इन द लेक्चर, बट आई होप सबको समझ आ गया होगा कि हमने सिंपली क्या किया, 5% किया है 12 सेंटीमीटर का, उसको ऐड कर दिया 12 सेंटीमीटर के साथ, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है वो रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप आ जाएगी, दैट इज 316 टाइम्स 31 6000 एम्पियर टर्न्स पर वेबर। ठीक है, अच्छा अब करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल रिलक्टेंस। और टोटल रिलक्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बिकॉज फ्लक्स का पाथ डिवाइड नहीं हो रहा, सो इट मींस कि हमारे पास सीरीज सर्किट बन रहा है, तो टोटल जो हमारे पास रिलक्टेंस आ जाएगी दैट शुड बी सम ऑफ रिलक्टेंस ऑफ द कोर प्लस रिलक्टेंस ऑफ द एयर गैप। सो हमने क्या करना है, दोनों रिलक्टेंसेस को ऐड अप करके यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल रिलक्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना था, व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ करंट दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ फ्लक्स डेंसिटी ऑफ 0.5 टेस्ला इन द एयर गैप। सो ये क्वाइट इजी है, हमने यहाँ से आई कैलकुलेट करना है। वी नो दैट मैग्नेटोमोटिव फोर्स F is equals to phi r, phi का हमें पता है that it is equals to BA and F is equals to NI। so इसमें क्या करना है, F की जगह NI पुट कर देना है, फ्लक्स की जगह BA पुट करना है, रिलक्टेंस हमें हमारे पास टोटल रिलक्टेंस है, ठीक है, which is the reluctance of the core plus reluctance of the air gap। जहाँ से हम I निकालेंगे तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, BAR by N। B गिवन है, एरिया हमें पता है, एरिया ऑफ द एयर गैप, बिकॉज हमें यहाँ पे एयर गैप की फ्लक्स डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सो जो टोटल एरिया आएगा एयर गैप का उसको हमने यहाँ पे लेना है, टोटल रिलक्टेंस हमने लेनी है, और हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्न्स है, यहाँ से हमारे पास जो करंट की रिक्वायरमेंट है वो आ रही है 0.602 एम्पियर is the actual amount of current that is required to produce a 0.5 Tesla density in the air gap। ठीक है, अब आपकी जो होमवर्क है उसमें आपने इसी की एक शॉर्ट एग्जांपल्स करनी है 1.1 एंड 1.3। 1.1 में आपके पास डिफरेंस ये है कि कोर यूनिफॉर्म है, कोर में कोई एयर गैप नहीं है, बट कोर की जो लेंथ है वो आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म नहीं है। तो आपने ये देखना है कि जिस कोर की लेग जिस कोर की हमारे पास जो वो लेंथ डिफरेंट है उसको हमने क्या करना, उसकी रिलक्टेंस हम अलग से कैलकुलेट करके वी वुड सी कि फ्लक्स का पाथ क्या बन रहा है, उस फ्लक्स पाथ के बेसिस पे वी हैव टू फाइंड द टोटल रिलक्टेंस और टोटल फ्लक्स इन द कोर। 1.3 भी आप लोग करेंगे, ये आपकी होम एग्जांपल्स हैं, आपने ये सॉल्व करनी है। जहां पे आपको कोई इशू आ रहा होगा सॉल्व एग्जांपल्स में या उसमें लेक्चर में, वो हम क्या करेंगे, लेटर ऑन इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। जो चीज आपको मिसिंग हो गई है या जो चीज नहीं समझ आई वो हम अपने ऑनलाइन सेशन में इस चीज को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको बुक चाहिए या आपको कोई हैंड आउट्स मेरे चाहिए, या अगर पॉसिबल फॉर यू तो मैं आपको ये एग्जाम्पल सॉल्व करके भी दे सकती हूँ, बट आई होप सो बिकॉज वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज ऑन द ऑनलाइन सिस्टम। सो मैं यही कोशिश करूंगी और मेरी यही आपसे एक्सपेक्टेशंस होंगी कि मैक्सिमम जो है वो आप इसको लेक्चर के थ्रू समझ लें। ठीक है, जो चीज नहीं समझ आ रही उसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे जो इस लेक्चर का एंड अप हो जाता है, उसके बाद हम जो है वो मूव अप करेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन जिसमें हम लॉसेस पढ़ेंगे मैग्नेटिक सर्किट्स के। ठीक है, मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, स्लो इसलिए जा रही हूँ बिकॉज आपके लिए थोड़ा सा मशीन्स का बैकग्राउंड बनाना जो है वो मेरे लिए मस्ट था। फिजिकली वी आर नॉट प्रेजेंट, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आपको सर्किट्स का, इलेक्ट्रिक सर्किट्स का कितना आइडिया है। ठीक है, तो आपके फीडबैक से थ्रू ऑनलाइन सेशन मुझे आइडिया होगा कि यहाँ पे जो है वो हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं या आपको और कितनी मेरे से इंफॉर्मेशन चाहिए होगी। ठीक है, सो आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर, आपको लेक्चर की समझ आई होगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।